Good morning, students. How are you? Fine? Very good. Beta, in previous lecture, we discussed, we studied first poem, Goodwill. Now we are going to start our second lesson of our syllabus, The Happy Prince. Yes, first of all, I shall explain this lesson to you in English and then in Hindi. So we shall take some paras in this lecture. See, this book is opened here and you can see marking with red pen 1, 2, 3, 4, 5, 6 likewise on page number 4 and 5. Yes, you can see. So we shall take some paras and I shall explain you paras first of all in English and then I shall explain this to you in Hindi. The all paras which I explain in English, that will be explained in Hindi also after the explanation of English. Okay. So you open your books and see that page number 4. The Happy Prince. Number 2. Lesson number 2. The Happy Prince. It is written by Oscar Wilde. In this story, he described the miserable condition, means pitiable condition, of the poor and the mean means selfish attitude of the rich person. This story also teaches us what? To have love and mercy. Mercy means compassion, pity for the needy and the poor. So see, the first para, it is marked here from high above the city up to really was not. Yes. In this first para, we see at the starting of the story a statue of the Happy Prince fastened on the tall column. Column means pillar. Pillar in the city. The statue was gilded. Gilded means covered with. The statue was gilded with thin leaves. Here leaves means layer. Okay. Leaves of gold. On the place of eyes of statue, he had two bright sapphires, means valuable blue stones. Sapphires. It is blue in color, sapphire. In Hindi we say it neelam, blue sapphires, means blue stones. And on his sword hilt means sword handle, the handle of the sword. There glowed means shone, a large red ruby, which is also a precious stone. As I think you know, ruby, जिसको माणिक in Hindi we say. Precious stone. Everyone used to admire him. How? First, town councillors used to say that he was very beautiful, like a weathercock. Weathercock, you know what is weathercock? Weathercock is an instrument used for showing the direction of the wind. Here we complete our first para with red marking. Now see the second para. Mothers of the little kids said in praise of the Happy Prince that they couldn't be like Happy Prince. When the kids, their kids wept, they used to say, if they couldn't be like the Happy Prince, when those kids cried for the moon, wept for the moon. Okay. When a disappointed man gazed at that statue, what he said? He said that he was happy that there was someone in the world who was quite happy. He was so disappointed. But on seeing the statue of the Happy Prince, he used to say, at least there was someone who was still happy. Okay. The charity children used to say in praise of this statue when they came out of the church hall or church, that the Happy Prince looked just like an angel. Angel means the messenger of God, you can say. In Hindi, Devdut. In Hindi, you say Devdut, angel.
these children were wearing bright cloaks. Cloaks means clothes, and white pinafores. Pinafores means aprons. These children who came out of the cathedral, they wore bright cloaks means cloths, and white pinafores. Pinafores means aprons. They were wearing these type of dress-ups, get-ups. Okay. Now see the third para. How do you know? Are you able to see? How do you know up to talk to her? Okay. Now the explanation of this para. Mathematics teacher asked those students how they knew that he looked just like an angel. When the cathedral children said that he looks just like an angel, then their mathematics teacher asked them how they knew that he looked just like an angel. They replied that they saw angels in their dreams. Yes, they saw angels in their dreams. That's why they could say that the happy prince looked just like an angel. Now one night, what happened? A little swallow was seen flying over the city. The swallow, swallow is a migratory bird. Migratory means traveling, who come from one country or one place to another place for their adaptation. Okay, so migratory bird, it cannot bear cold, and where there is very cold, these migratory bird migrates to hot places for saving themselves from the cold. Okay, so one night their migratory bird swallow was seen. His friends had returned to Egypt 6 weeks ago. All friends. But because of his love with the reed a type of a grass, love with the reed, the swallow stayed behind. He stayed behind. He did not go with his friends. Why? Because he fell in love with the reed. Yes. Now see the para number 4 from Shall I Love You Too, All Flew Away. The explanation of this para. Now you can say this is abnormal thing for all of us, that the swallow bird had fallen in love with reed, a type of a grass, isn't it? Yes, but it was there. He attracted to her and proposed her, and she gave affirmation to it, and so he stayed there for reed. On seeing the other swallows twittered. They said and expressed surprise. They got very surprised that one of their friend had fallen in love with the reed and wanted to stay there for her. So they twittered and expressed surprise. When the autumn came, they all flew away. All swallows flew away except that little swallow. He stayed there. Why? Because he had fallen in love of reed, and that's why he stayed there for her. Okay, I hope you understood this. Okay, see para number 5 from after they had gone up to flew away. He flew away. You can see there. Now the swallow felt alone. Which swallow? Which is stayed behind. He started feeling alone. Why? Because all his friends had gone to Egypt. They had returned to their places, Egypt, and he left alone there, and also he got tired of his lady love, means reed. Why? Because she did not speak to him. Tell me, how could she speak? Can reed speak? R-E-E-D, reed, speak? No. So how could she? But he was feeling alone, as she did not speak to him. That's why. And she did not have any conversation with him, and there was no one to talk with him. He also wanted reed to travel with him.
But she denied. Why? As she liked and loved her home. She said that she was not able to come with him. Why? Because she liked and loved her home. He got irritated with this and decided to go back to Egypt and said goodbye to Reed. He stayed for Reed there, but as she didn't have any conversation with her, he felt lonely, he felt tired of her, and he decided to go back to his own place. Okay, I think you understood this. Now see the para number 6 from all day long he flew up to merely her selfishness. Are you seeing? Yes. Now, after saying goodbye to her, he flew in the city the whole day, and at night he came back to the city. He searched place for his stay. He would have to stay there, so he searched place for him. Then he saw what? Happy Prince's feet. He saw Happy Prince's feet, and he became happy that he had got a golden bedroom. Why he thought so? Golden bedroom? Because Happy Prince's feet were rather whole body was gilded with leaves of gold, as we had studied or read earlier in this chapter. Now he prepared to sleep there between his feet, but just as he tried to sleep, a large drop of water fell on him. He got confused and surprised that there was not a single cloud in the sky and stars were shining, and how it started raining. He thought that it started raining. In his opinion, the climate in the north of Europe was really dreadful, really horrible. He was thinking so. At this time, he was also remembering Reed. He had the remembrance of Reed also. Beta, now see page number 6. You can see para number 7. Then another drop fell up to filled with pity. Yes. So explanation of this para. He was thinking about Reed. Okay. At the same time, when he was thinking about the Reed, the another drop fell on him. He cursed the statue. He said back to statue that it was useless. This statue was useless as he could not save him from the rain. What is the use of this statue as it could not save me? He thought so. He decided to put up, means stay, on a good chimney pot to be secure. But before he could fly, a third drop fell on him. Another drop, third drop fell on him, and he looked up. On looking up, what he saw? What he saw? He saw that the eyes of the Happy Prince were filled with tears, and tears were running down his cheeks. He saw that the face of Happy Prince looked very beautiful, and Swallow filled with mercy. Swallow filled with mercy on seeing this. He got very sad. Now you can see para number 8 from Who Are You Up To? Chose But Weep. Who are you up to? Chose but weep. Yes. He asked Happy Prince about him. Who are you? Like this. Happy Prince said that he was Happy Prince. Swallow asked him if he was Happy Prince, why he was weeping then. In his opinion, if he was Happy Prince, he must be happy. So why he was weeping? Now Happy Prince started to tell his story. He said that when he was alive and had a human heart, yes, and had a human heart, he had not known what tears were, because
He lived in the palace comfortably and did not know what sorrow was. In his palace, sorrow was not allowed to enter. Means there was no sorrow, no suffering in his palace. He continued saying that in the daytime he used to play with his companions, means his friends, in the garden of the palace, and he led the dance in the great hall in his palace in the evening. There was a big wall around the garden. But he never cared to see or ask what lay beyond that wall. What happened beyond that wall? What was happening beyond that wall? He never used to care. In the palace, he was so happy and comfortable that he did not pay attention towards anything outside. His courtiers, means persons of his court, called him Happy Prince. Why? Because he was very happy indeed. So they called him Happy Prince. He lived happily, and when he died so. And he said that when he was dead and he was set up, means his statue was set up there so high that he could see all the sufferings, ugliness, miseries in his city, because he was set up very tall, very high on the pillar, and he could see everything from there, the ugliness, the sufferings of his persons in the city. He was not able to do anything for them, rather weep. He was helpless because he was fastened there. His statue was fastened there on the pillar. The Happy Prince felt guilty also on not able to lessen the sufferings of his people, so he was weeping. That's why he was weeping. He was feeling guilty as he was Happy Prince in his life, and he could not pay attention to the sufferings, ugliness, poverty of his people in the city, as it was his responsibility, it was his liability, and he could not fulfill his liability. That's why he was feeling guilty and he was weeping. हाँ बेटा, अब यही पूरा जितना अभी तक आपको पैरा नंबर 8 तक मैंने समझाया है, जो मैंने टिक किया है रेड पेन से, तो अब ये पूरे पैरा का हिंदी में भी आपको मीनिंग बता देती हूँ, पूरे पैरास को समझा देते हैं। बेटा ये जो कहानी है हैप्पी प्रिंस की, नाम से ही समझ में आता है कि वो हैप्पी प्रिंस मतलब वो हैप्पी ही रहा होगा, लेकिन वास्तव में वो हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी भी था। तो ये हम बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि हैप्पी प्रिंस जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी में, इस कहानी में जो गरीब लोग थे उनकी जो दयनीय दशा थी, पुअर कंडीशन थी, और जो बड़े उच्च वर्ग के लोग हैं उनके जो स्वार्थी जो उनका रवैया होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। और इसमें ये भी बताया गया है कि हमें किस तरह से लोगों के प्रति दया रखनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करनी चाहिए, ये सब उसमें बताया गया है। तो यहाँ पर इस स्टोरी में ये बताया गया है कि हैप्पी प्रिंस के स्टैचू यानी जो मूर्ति होती है उसको एक बड़े पिलर में शहर के बीचों बीच लगा दिया जाता है। ऐसा होता है ना जनरली कि कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति गुजर जाता है, पास अवे हो जाता है, तो उसके स्टैचू को उसके सम्मान में वहाँ पर लगाया जाता है किसी चौराहे पे, कोई कहीं पर। तो ऐसे ही हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को वहाँ शहर के बीचों बीच एक बड़े पिलर पे लगा दिया जाता है और बहुत ऊंचाई पे लगाया जाता है। तो ऊंचाई पे लगाए जाने की वजह से वो स्टैचू पूरे शहर को देख सकती थी। तो बेटा यहाँ पर ये थोड़ा सा पर्सोनिफिकेशन है,
मैडम स्टैचू कैसे देखेगी, स्टैचू तो नॉन लिविंग थिंग है ना, ये मान सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हैप्पी प्रिंस की स्टैचू के लिए और स्वेलो के लिए, दोनों के लिए ही वर्ड यूज़ किया गया, इट वर्ड यूज़ नहीं किया गया, इट प्रोनाउन यूज़ नहीं किया गया। क्या यूज़ किया गया? ही प्रोनाउन यूज़ किया गया। यहाँ पर हम उनको मानते हैं इंसान के रूप में, माना है यहाँ पर लेखक ने भी उनको इंसान के रूप में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, पर्सन के रूप में किसी को मान लेना। ठीक है, या तो वो कोई अमूर्त चीज़ होती है, या हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको मान लिया जाता है पर्सन के रूप में। तो उसको जब पर्सन के रूप में मानते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो ये जो पर्सोनिफिकेशन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर प्रोनाउन ही यूज़ किया गया। ठीक है, तो यहाँ वो जो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को लगाया गया था, और वो अब चूंकि वो प्रिंस था, है ना, तो प्रिंस के पूरे शरीर पे जो कवरिंग थी वो पूरे गोल्ड की थी, यानी गोल्ड का जो सोने का आवरण था वो लगाया गया था। और आँखों की जगह पे उसके ब्लू सफ़ायर्स, मतलब कि ब्राइट सफ़ायर्स और ब्लू स्टोन्स लगाए गए थे, मतलब नीलम, 2 नीलम लगे थे आँख की जगह, जो कि बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स माने जाते हैं, बहुत कीमती होते हैं। और उसके जो, अब चूंकि ये राजकुमार था तो वो तलवार भी रखता होगा, तो तलवार भी उसके स्टैचू में लगी हुई थी, तो बनाई गई थी। तो उसकी जो हिल्ट यानी हैंडल था, उसमें एक बहुत बड़ा सा रूबी शाइन कर रहा था। रूबी एक लाल कलर का माणिक जिसको बोलते हैं, वो भी एक बहुत प्रेशियस स्टोन होता है, जो बहुमूल्य रत्न होता है। अब यहाँ जो हैप्पी प्रिंस की इतनी सुंदर स्टैचू थी कि जो भी उस स्टैचू को देखता उसकी तारीफ करता ही करता। तो अब जो टाउन काउंसिलर्स वहाँ से जाते तो उसको एडमायर करते हैं कि बिल्कुल वेदर कॉक की तरह एकदम बहुत सुंदर दिखाई देता है। वेदर कॉक आपने देखा होगा जी, नॉर्थ साउथ की जो डायरेक्शन बनाने वाला वो जो प्लस का साइन होता है, उसके ऊपर में एक मुर्गे जैसा कुछ रखा होता है ना, तो वो वेदर कॉक कहलाता है। तो यहाँ उससे उसकी तुलना करते हैं। वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शन शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चों की माएँ होती थी, वो जो अब होते हैं बच्चे बचपन में, मम्मी हमको चंदा ही मामा चाहिए, चंदा ही चाहिए, है ना, इस तरह से जिद करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों के माएँ बोलती थी कि तुम हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं बनते, देखो वो वहाँ कितना शांत खड़ा है और कुछ भी चीज़ की जिद नहीं करता है। माँ इस तरह से उसकी तारीफ़ करती थी। जब कोई निराश व्यक्ति उसको देखता तो कम से कम बोलता है कि कम से कम कोई तो है दुनिया में जो खुश है। हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी बहुत सुंदर थी, और वो हैप्पी भी दिखाई देता था, उसकी मूर्ति ही वैसी बनाई गई थी। वो डिसअपॉइंटेड मैन भी बोलता कि चलो कोई तो है जो बहुत खुश है। वो निराश व्यक्ति भी उसको देख के थोड़ा सा पॉजिटिविटी में आता। चैरिटी चिल्ड्रन, मतलब जो आश्रम के बच्चे जो चर्च से प्रेयर करके बाहर निकलते, और उनका वो जो ड्रेसअप हमने पहले डिस्कस किया कि वाइट एप्रॉन पहने हुए और अच्छे ब्राइट कपड़े पहने हुए, तो वो उसको देखकर बोलते कि ये बिल्कुल देवदूत की तरह लगता है। उसके एडमिरेशन में ये बात बोलते थे। मैथमेटिक्स टीचर उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों को कैसे पता कि वह एंजल की तरह दिखता है। तो मैथमेटिक्स टीचर के ऐसे पूछने पर वो बच्चे अपने मासूमियत से जवाब देते कि भाई हमने, अपने टीचर को बोलते कि हमने उन्हें एंजल्स को सपनों में देखा है, और वो बिल्कुल ये हमारे जो हैप्पी प्रिंस है बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है, इसीलिए ये हमको एंजल लगता है। अब ये होता है कि एक रात वहाँ पर एक माइग्रेटरी बर्ड स्वैलो पक्षी दिखाई देता है। अब वो स्वैलो पक्षी केवल एक ही होता है, उसके सब साथी 6 हफ्ते पहले ही वापस इजिप्ट यानी मिस्र जा चुके होते हैं। अब ये स्वैलो पक्षी ये होते हैं माइग्रेटरी बर्ड, जो एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना करते हैं। क्यों करते हैं? इनको ठंड सहन नहीं होती है, तो ये गर्म प्रदेशों की ओर उड़ते हैं। जब बहुत ठंड पड़ती है जिस भी प्रदेश में, वहाँ से उड़ के गर्म प्रदेश में जाते हैं। जब गर्म प्रदेश में ठंड पड़ने लगती है तो वहाँ से उड़ के फिर इधर आ जाते हैं अपने पुरानी प्लेस पे। तो उन्हीं माइग्रेटरी बर्ड में एक स्वैलो बर्ड था जो इस सिटी में दिखाई दिया। अब वो अकेला ही रुक जाता, उसके सब साथी जा चुके थे। वो अकेला क्यों रुक जाता? क्योंकि वो रीढ़ के प्रेम में पड़ गया था। रीढ़ मतलब एक तरह की घास होती है। तो वो वहाँ पर जब एक कीड़े के पीछे भाग रहा था या उड़ रहा था, तो वहीं पे उसको वो खूब सारी घास नदी के किनारे दिखाई दी, और उसको वो घास इतनी पसंद आई कि वो वहीं रुक गया। अब वहीं रुक गया तो ठीक है। अब लेकिन जब इसके जाने की बारी आई तो इसने मना कर दिया रीढ़ की वजह से। रीढ़, अब उसके सब फ्रेंड्स चले गए। कुछ दिन बाद ये इसको बोरियत होने लगी। क्यों?
क्योंकि एक तो वो अकेला हो गया, और दूसरी बात उससे अब वो रीड बात भी नहीं करती। अब वो रीड कैसे बात करेगी, घास क्या बात करेगी, है ना। तो वो रीड कोई बात भी नहीं करती उससे, कोई कन्वर्सेशन नहीं करती। तो अब ये इसको थोड़ा बोरिंग फील होने लगा, इसको अकेलापन लगने लगा। तो अब उसने रीड से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। रीड मना कर देती है, मना कर देती मतलब हवा चलती है और रीड ऐसी हिलती डुलती है, तो वो उसको समझ जाता है कि ये मना कर रही है। तो ये गुस्से में आ जाता है, चिढ़ जाता है, और उसको अलविदा करके ये वापस जाने का, मिस्र वापस जाने का मन बना लेता है, इजिप्ट वापस जाने का मन बना लेता है। अब जब इसको वापस जाना था तो उस दिन वह पूरा दिन घूमता रहा, और रात में कि अब वापस जाना है, एक दिन और रुकता है करके वो पूरा दिन सिटी घूमा उसने। और उसके बाद रात में वो थोड़ा सिटी में ही रुकने के लिए दूसरे दिन निकलूंगा सुबह सोचकर अब अपने सोने की जगह ढूंढने लगा। वहाँ उसको हैप्पी प्रिंस की स्टैचू मूर्ति दिखाई देती है। बड़ा खुश होता है वह कि चलो मुझे एक गोल्डन बेडरूम मिल गया है सोने के लिए, बहुत सुंदर सा है, हैप्पी प्रिंस के 2 फीट के बीच में। अब वो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है वो फिक्स थी, है ना, तो फीट के बीच में जो जगह थी वहाँ पर, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही वो सोने की तैयारी करता है तो उसके ऊपर एक पानी की बूंद, बड़ी सी बूंद, अब हैप्पी स्वैलो छोटा सा पक्षी है ना, तो उस पर एक बड़ी सी बूंद गिरती है पानी की। तो अब उसको आश्चर्य होता है कि अभी पूरा आसमान साफ है, तारे दिखाई पड़ रहे हैं, और ऐसे समय में ये कौन सी बारिश हो रही है। उससे ऐसा लगता है कि शायद बारिश हो रही है, और वो थोड़ा सा परेशान भी होता है कि यूरोप के नॉर्थ का जो है ये टेम्परेचर, ये क्लाइमेट बिल्कुल अजीब सा रहता है। अब यहाँ पर उस समय उसको रीड की भी याद आती है, और जैसे ही वो रीड के बारे में थोड़ा सोचता रहता है उसी समय दूसरी पानी की बूंद गिरती है। अब वो स्टैचू पे गुस्सा करता है, स्टैचू पे नाराज होता है कि इतनी बड़ी स्टैचू और मेरे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, ये पानी मेरे पे गिर रहा है, क्या मतलब है यहाँ रुकने का। तो वो अपना मन बना लेता है कि मैं यहाँ से उठ जाता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ, और एक आध चिमनी पॉट में अच्छे से जाके वहाँ पर शेल्टर लेता हूँ। तो ऐसा सोच के बस वो उठने के लिए होता ही है, पंख फड़फड़ाने के लिए होता है, उतने में उसके ऊपर एक तीसरी बूंद गिरती है पानी की। तो अब जैसी वो तीसरी बूंद पानी की गिरती है तो थोड़ा सा वो सिर उठा के देखता है। अब देखता है तो यहाँ उसको क्या दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि जो हैप्पी प्रिंस के चेहरे से, आंखों से आंसू बहते हुए गाल पर लुढ़क कर आ रहे थे, बहते हुए गाल पर चले आ रहे थे। मतलब वो जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू है वो रो रही थी। तो इसको देख के आश्चर्य होता है, वो उसको दया भी आती, इतनी सुंदर मूर्ति है, इसके गोल्डन चिक्स हैं और ये रो रहा है, तो उसको दया भी आती है, अफसोस भी होता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और क्या प्रॉब्लम है। तो हैप्पी प्रिंस बताता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो इसे आश्चर्य होता है कि जब तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो। तो यहाँ पर वो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मैं जब तक जीवित था मैं बहुत खुश था, बहुत कंफर्टेबली सैनसोइसी की पैलेस में, महल में रहा करता था। मैं वहाँ के बड़े गार्डन में खेला करता था। वहाँ क्या दुख क्या होता मैं नहीं जानता, क्योंकि वहाँ दुख को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। मतलब यहाँ दुख क्या होता है वो जानता ही नहीं था। इतना कंफर्ट था वहाँ, इतनी सुविधाएं थी, इतना आराम था कि उसको कुछ भी वहाँ महसूस ही नहीं होता था। गार्डन में खेला करता था, गार्डन के आजू बाजू में बहुत बड़ी बड़ी दीवार, जैसे कि राजमहल में हुआ करती है वैसी दीवार हुआ करती थी। और वो दीवार की उस साइड क्या है इसने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि ये खुश था और उसको ज़रूरत भी नहीं थी। घर उसके महल में ही उसको सब सुविधाएं थी, तो वो बाहर की क्यों सोचता। तो उसने कभी जानने की, पूछने की कोशिश ही नहीं की कि ये दीवार के बाहर क्या हो रहा है और क्या है। अब चूंकि वो प्रिंस था तो उसकी बड़ा होने पे लाइबिलिटी भी बनती थी कि उसके शहर में क्या हो रहा है, लेकिन उसने ये सब नहीं देखा। अपने ग्रेट हॉल में डांस किया करता, दोस्तों के साथ खेला करता गार्डन में, और इस तरह से उसका बहुत अच्छा समय बीता। और ऐसे ही वो समय बीतते बीतते वह गुजर भी गया, पास अवे हो गया इसी तरह से। अब वह कहता है लेकिन जब मैं मर चुका हूँ और मेरी स्टैचू को इतनी ऊंचाई पे लाके फिक्स कर दिया गया है तो मैं यहाँ से पूरे शहर को देख सकता हूँ। ये सब आप उसको बता रहा है कि इसको स्वैलो को, कि यहाँ से मैं सब अपने लोगों की सफरिंग्स को, उनकी गरीबी को, उनकी परेशानियों को यहाँ से देख सक रहा हूँ। और मैं कुछ भी नहीं कर सक रहा हूँ जो मुझे अपने समय में करना चाहिए था इन लोगों के लिए, अब वो मैंने तब तो नहीं किया और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर फास्टन कर दिया गया हूँ, मेरी मूर्ति यहाँ लगा दी गई है, मैं तो हिल भी नहीं सकता हूँ। इस चीज़ की उसको इतनी तकलीफ थी कि उसने अपना
अपना कोई भी कर्तव्य अपनी लाइफ में नहीं निभाया, इस कर्तव्य न निभाने का दुख होने की वजह से वो हैप्पी प्रिंस बहुत रो रहा था। और वही उसकी जो रोने की बूंदें थी, उसके आंसू थे, वो स्वेलो पक्षी पर गिरे। तब स्वेलो पक्षी ने नज़र उठाकर जब देखा, तब उसको हैप्पी प्रिंस का ये दुख समझ में आया। तो वो था तो हैप्पी प्रिंस जरूर बच्चों, है ना, लेकिन वो वास्तव में दुखी था। दिल का बहुत अच्छा बताया गया हैप्पी प्रिंस, लेकिन इसकी मजबूरी थी कि अननोन रहा, अननोइंगली, इनोसेंटली, इसने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, अननोइंगली इससे जो कुछ भी हुआ, तो इसके लिए दोष हम इसको नहीं दे सकते। लेकिन ये दोष अपने सिर ले रहा है कि मैं एक राजकुमार होके मेरा जो कर्तव्य था वो मैं नहीं निभा पाया, और मेरी जनता, मेरी प्रजा इतनी दुखी है, और मैं आराम से इतने अच्छे से महल में रहता रहा, और मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि महल के बाहर क्या हो रहा है, कि कितने लोग परेशान हैं। ये जो मेरा कर्तव्य था मुझे करना चाहिए था। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब इसके बाद we shall continue the next explanation in English and in Hindi also. Okay, till then, bye, thank you.